Dear students, welcome all of you again in this lecture room. So, we have already discussed or completed first unit of genetics, that is Mendelism. So, now today's topic, जो आपका second unit is genetics में है, that is called as molecular basis of inheritance. ये दूसरा चैप्टर है, तो इसमें हमने बहुत से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. तो जो आज का टॉपिक है अंडर दिस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज न्यूक्लिक एसिड्स. ये आज का टॉपिक है, हमने आज डिस्कस करना है व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, देयर अदर एस्पेक्ट्स. सो न्यूक्लिक एसिड्स जो है एक्चुअली दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स और वी कैन से सबस्टेंसेस और वी कैन से substances present in nucleus of a cell. तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये सबसे पहले डिस्कवर किए. इट वाज फर्स्ट कॉल्ड एज फ्रेडरिक Master. So he first of all discovered these nucleic acids in 1869 in nucleus of a cell. So nucleus cell में जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में उसने ये सबस्टेंसेस डिस्कवर किए. एंड these nucleic acids, as we know, they are acidic in nature and are called as nucleic acids. So these nucleic acids, they are of two types. The nucleic acids, they are of two types. Number one is called as DNA, number two is called as RNA. So these are the two important substances or important macromolecules which are present in this nucleus of a cell. One is called as DNA, other is called as RNA. तो पहले हम कभी क्वेश्चन होता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, इनमें क्या डिफरेंस होती है. तो पहले वो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA. कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे हम DNA लिखेंगे और यहाँ पे हम RNA लिखेंगे. तो ये DNA जो है ये always or mostly acts as genetic material. It mostly acts as genetic material. and ये सेल में के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और ये acts as a genetic material and on genetic material that is transmitted from one generation to another generation, or we can say it stores genetic information. So that's why it acts as a genetic material. But mostly RNA, mostly it is non-genetic. Mostly it is non-genetic. Mostly it is non-genetic. At that time it acts as messenger. And it carries message from nucleus. This is nucleus. So nucleus से ये मैसेज कैरी करता है साइटोप्लाज्म, वहाँ बाकी जो प्रोटीन साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन मैसेज यही RNA लाता है. सो दैट इज व्हाई दिस एक्ट्स एज ए मैसेंजर. बट इन some viruses they where DNA is absent, and those viruses where DNA is absent, they contain, some viruses contain RNA. So in some viruses RNA acts as genetic material, and those viruses where DNA is absent, तो उन वायरस में RNA as a genetic material act करता है, and it acts as genetic material. It acts as genetic material. नंबर वन. नंबर टू, ये DNA जो है इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं, दे इंक्लूड एडेनिन, guanine, thymine and cytosine. So these are four nitrogenous bases which are present in this DNA. But in RNA, adenine is present, guanine is present.
in place of this thymine, here it is uracil. बाकी जो है they are same. DNA में एडेनिन, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन होता है, बट इन RNA in place of this thymine there is uracil. ये इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है. नेक्स्ट इज ये न्यूक्लिक एसिड्स है, उनमें पेंटोज शुगर होता है. दे कंटेन पेंटोज शुगर. तो जो पेंटोज शुगर होता है इस डीएनए में, उनको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज. यानी कि आप इस तरह लिखो, द पेंटोज शुगर इन डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज. डी मीन्स एब्सेंस. ये जो पेंटोज शुगर होता है, तो पेंटोज शुगर के दूसरे कार्बन एटम में यहाँ OH ग्रुप जो होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें एब्सेंट होता है. डीएनए का पेंटोज शुगर है, उसके दूसरे कार्बन पे जो ऑक्सीजन होता है वो एब्सेंट होता है. सो दैट इज व्हाई दिस is called as deoxyribose. The pentose sugar in DNA is called as deoxyribose. But in RNA it is ribose. Yeah, you may write down the pentose sugar in RNA is ribose. वहाँ पे ये hydroxy group present होता है, तो उनको हम उस पेंटोज शुगर को हम राइबोज कहते हैं. तभी तो ये यहाँ डीएनए जो है इट स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो आरएनए को हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड. उसको हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड. ये दूसरी इंपॉर्टेंट, these are two important differences. एक तो मैंने कहा कि as far as nitrogen bases are concerned, in DNA there is thymine, but in RNA there is, in place of thymine there is uracil. ये एक important difference है. Second difference lies here, जो पेंटोज शुगर में होता है, चाहे DNA या RNA, तो DNA में पेंटोज शुगर is called as deoxyribose due to the absence of oxygen or hydroxyl group at this carbon. But in RNA it contains this oxygen, so here it is called as ribose nucleic acid. तो ये अहम डिफरेंसेस है. और इसके अलावा और भी डिफरेंसेस है. ये डीएनए जो है इट इज डबल, मोस्ट इट्स ऑलवेज डबल, या मोस्टली इट इज डबल स्ट्रैंडेड. And the DNA is double stranded structure. Double stranded, इसके दो strands होते हैं, that is called as double stranded structure. But in RNA it is mostly single stranded. It is mostly single stranded. In RNA it is mostly single stranded. So these are differences between DNA and RNA. के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, what are the differences between DNA and RNA. So these are differences between DNA and RNA. You may write down, so you may take screenshot. So कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में difference between RNA and DNA. तो उसके बाद ये न्यूक्लिक एसिड्स जो है, ये न्यूक्लिक एसिड्स जो है, these are polymers of, so these nucleic acids sometimes, these nucleic acids, they are polymers of nucleotides. They are polymers of nucleotides. They are made up of nucleotides. जब बहुत से nucleotides होते हैं, they combine together, make a chain-like structure that is called as polynucleotide chain. That is called as polynucleotide chain. So इस चेन की लेंथ, चाहे हम DNA ले लेंगे या RNA हम ले लेंगे, तो इसकी लेंथ अगर हम कंसिडर करेंगे, हाउ वी कैन डिटरमाइन द लेंथ of suppose DNA, for example length of DNA, it refers to number of nucleotides in a strand, or you may write down chain. यानी एक स्ट्रैंड में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, दैट विल बी द लेंथ ऑफ DNA. सो लेंथ ऑफ DNA it refers to number of
न्यूक्लियोटाइड्स इन दिस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लेंगे एक बैक्टीरियोफेज है, दैट इज कॉल्ड एज 5174, and this type of bacteriophage, it contains 5386 nucleotides. It contains 5386 nucleotides. तो इसी तरह आप अगर हम ले लेंगे दूसरा लैम्डा फैज, अगर हम ले लेंगे लैम्डा फैज, दिस इज अनदर काइंड ऑफ वायरस। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें देयर आर अबाउट 48502 nucleotides, 48502 nucleotides, and in this lambda phage the number of nucleotides is equal to 48502 nucleotides. अगर हम इसी तरह ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, दैट इज एक किस्म का बैक्टीरिया है, इट्स कॉल्ड एज एस्चेरिचिया कोलाई. इट इज present in our intestines, so it is very important bacteria because it helps us to in making this vitamin B. So अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स है, दैट इज इक्वल टू 4.6 into 10 raised power 6 बेस पेयर्स या न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स है, इनको हम बेस पेयर्स भी कहते हैं. तो इन इक्वल है द नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज इक्वल टू 4.6 into 10 raised power 6 बेस पेयर्स. इसी तरह अगर हम ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए लेंगे, इन ह्यूमन्स हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए इन ह्यूमन बीइंग्स, इनके हैप्लॉइड ह्यूमन्स में लेंगे, इन ह्यूमन्स हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए अगर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 3.3 into 10 raised power 9 बेस पेयर्स. And in human beings, haploid DNA content, so that is equal to 3.3 into 10 raised power 9 base pairs. So this is the length. So it may vary from species to species or organism from one species to another. So that is why I told you in this 5174, the number of nucleotides are, you may here write down base pairs. So they are equal to 5386 base pairs are nucleotides. In this lambda phage, another type of bacteriophage, so here it contains 48,502 base pairs are, you may write down, in nucleotides. Similarly in E. coli, 4.5 into 10 raised power 6 base pairs. In haploid content DNA of humans, it is equal to 3.3 into 10 raised power 9 base pairs. So this is called as length of, we can say this refers to length of DNA. Length of DNA. तो मैंने यहाँ कहा जो न्यूक्लिक एसिड्स है, these are polymers of nucleotides. Nucleotides, and these are polymers of nucleotides. तो जिसे हम कहते हैं polynucleotides. Nucleotides. Nucleic acid, whether it may be DNA or it may be RNA. So it is the polymer. These nucleic acids are polymers of nucleotides. So they are called as polynucleotides. As I told you that a number of nucleotides come together, they make a chain that is called as polynucleotide chain. That is called as polynucleotide chain. तो ये न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड ले लेंगे, इसमें इट कंटेन्स 3 components. न्यूक्लियोटाइड इट कंटेन्स 3 components. And इस तरह आपको या न्यूक्लिक एसिड और यू मे राइट डाउन दिस न्यूक्लियोटाइड contains 3 components. One is called as phosphate group, PO4, या you may write down here phosphate group. This one component. Second is called as pentose sugar.
पेंटोज शुगर में इसमें 5 कार्बन होते हैं, C5 कार्बन कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर, इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर। एंड द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। सो अगर ये पेंटोज की बात हम करेंगे इन डीएनए इट इज कॉल्ड एज deoxyribose, but in RNA it is called as ribose। तो अगर हम नाइट्रोजनस बेसिस की बात करेंगे, there are two types of nitrogenous bases, one is called as purine, one type is called as purine, second type is called as pyrimidine। So there are two types of nitrogenous bases, one is called as purine, other is called as pyrimidine। तो जो purines होते हैं these are dicyclic, जो pyrimidines होते हैं they are monocyclic। तो purines की बात है, they are of two types further, जो purine nitrogenous bases हैं they are of two types, one is called as adenine, adenine, second is called as guanine। So these are two types of nitrogenous bases come under this purine, and adenine and guanine। ये pyrimidines की बात है, they are of three types, one is called as cytosine, यहाँ पर दिया cytosine denoted by C, other is called as thymine, so it is denoted by T, so last one is called as uracil। This uracil is also called as thiomethylurine, so या thimethyl uracil भी लिख सकते हैं आप, thimethyl uracil, so it is denoted by U। ये these are called as pyrimidines, यानी cytosine है, thymine है and uracil। So these are three types of pyrimidines। जो पहले दो के हैं that is cytosine and thymine, they are present in DNA, so ये uracil है, uracil is present in RNA but in place of this thymine, थायमीन के बदले आरएनए में यूरेसिल होता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे डीएनए में ACTG, एडेनिन, साइटोसिन, थायमीन एंड गुआनिन होता है, एंड इन आरएनए एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल इन प्लेस ऑफ दिस एंड गुआनिन फॉर नाइट्रोजन बेसिस। सो these are called as nitrogenous bases। आप ये किस तरह एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं या किस तरह एक स्ट्रैंड बनाते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको। तो जब ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, पहले क्या होता है, पहले जो नाइट्रोजनस बेस नंबर वन पेंटोज शुगर एंड दिस नाइट्रोजनस बेस, ये जो कंबाइन होते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ में दिस इज हेयर नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे बनाऊंगा मैं, here this nitrogenous base, sorry this pentose sugar here। तो पहले पेंटोज शुगर आता है, तो पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस कंबाइन होता है। तो जो जब ये दोनों कंबाइन होते हैं देयर में विद द हेल्प ऑफ लिंकेज, यानी यहाँ पे एक लिंकेज डेवलप होती है बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कभी ये ऑब्जेक्ट यूनिट में भी आ सकता है या बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो पहले क्या, हम ये पेंटोज शुगर है, तो इस पेंटोज शुगर के यहाँ पे C और एक कार्बन बनाऊंगा, 4 कार्बन यहाँ है, HH। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन और एडेनिन यहाँ पे कंबाइन होगा जिस पेंटोज शुगर के साथ, तो ये कार्बन नंबर 1 पर यहाँ पे कंबाइन होगा। सो 1-C या 1-C कार्बन
यहाँ पे कंबाइन हो, ये एडेनिन इस पेंटोज शुगर के साथ हो जाएगी, तो दिस लिंकेज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये एक किस्म का बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हुआ, तो यहाँ पे पेंटोज शुगर एंड दिस एडेनिन कम क्लोज टुगेदर। तो उसके बाद क्या होता है, इस पेंटोज शुगर के साथ यहाँ पे फास्फेट ग्रुप, फास्फेट आता है यहाँ पे, बट ऑन कार्बन नंबर 5, यानी कार्बन नंबर 5 ऑफ दिस पेंटोज, इसके साथ फास्फेट जो है ऐड होता है। तो ये लिंकेज, दूसरी वही लिंकेज, पहली लिंकेज यहाँ पे क्या, ये एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पे फास्फेट ग्रुप एंड दिस पेंटोज शुगर, यहाँ पे लिंकेज होगी, दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज फास्फोएस्टर लिंकेज। And the second linkage between phosphate and this pentose sugar, that is called as phosphate ester linkage। तो जब ये आ गया, जिसमें कॉल्ड एज वन न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, न्यूक्लियोटाइड जो होता है इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज कॉल्ड एज, फर्स्ट इज कॉल्ड एज PO4 phosphate group, second here is called as pentose sugar, the third type is called as नाइट्रोजनस बेस, N बेस, यहाँ में शॉर्ट में लिखूंगा N बेस। तो पहले बॉन्ड डेवलप बिटवीन पेंटोज शुगर एंड दिस नाइट्रोजनस बेस, दिस इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसके बाद फास्फेट ग्रुप यहाँ पे आएगा कार्बन नंबर 5 पर, सो दिस विल बी कॉल्ड एज फास्फोएस्टर लिंकेज। तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ से आएगा, मान तो यहाँ पे हम दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, एंड हियर ये पेंटोज शुगर है, दिस इज पेंटोज शुगर। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 5, तो इसके साथ फास्फेट ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे मान लो सेकंड ये मैं दूसरे कलर से यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ मान लो यहाँ पे थाइमीन, सेकंड नाइट्रोजन बेस यहाँ पे आएगी, तो हेयर विल बी एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो यहाँ पे फास्फोएस्टर बॉन्ड आएगा। तो ये फास्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोटाइड साइड के साथ कंबाइन होगा, यानी दिस फास्फेट ग्रुप, यानी दिस हाइड्रोजन, दिस फास्फेट ग्रुप विल कंबाइन विद दिस। यहाँ तक, अगर यहाँ तक हम ले लेंगे, दिस इज न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, तो ये बन गया हमें न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। तो पहला न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये कंबाइन होते हैं, यहाँ पे फास्फेट यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो लिंकेज डेवलप होगी, दैट लिंकेज विल बी कॉल्ड एज फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, दैट इज कॉल्ड एज दिस लिंकेज, दिस इज कॉल्ड एज फास्फोडाइएस्टर। यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे इसका अपना एक ऑक्सीजन होगा, ये फास्फेट जो हम लिखते हैं PO4, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे चारों तरफ ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिस यहाँ पे जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, तो यहाँ पे इसका फास्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोटाइड के साथ कंबाइन होगा, बट द लिंकेज हियर विल बी कॉल्ड एज फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, दिस विल बी कॉल्ड एज फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो डाइएस्टर क्यों बोलते हैं, ये फास्फेट जो है, यहाँ भी इसका एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ भी ऑक्सीजन, तो लिंकिंग जब होती है, इसका एक ऑक्सीजन, उसका एक ऑक्सीजन, सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज डाइएस्टर ग्रुप या डाइएस्टर बॉन्ड। सो फर्स्ट लिंकेज इज कॉल्ड एज एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड दिस पेंटोज शुगर एट कार्बन नंबर 1 या कार्बन नंबर OH1। So second type of linkage between phosphate and this pentose sugar, that is called as phosphoester linkage at carbon number 5. Third type of linkage between two nucleotides, between this phosphate group of one nucleotide and another nucleotide. So here this linkage is called as phosphodiester linkage. This is called as linkage third here. So उसके बाद इसी तरह यहाँ पे तीसरा भी आएगा, तीसरा थर्ड nucleotide here. Third nucleotide, this may be called as pentose. यहाँ पे लिखेंगे हम, this called as pentose sugar. यहाँ पे will be just
सी यहाँ H आएगा, सो हियर इट विल बी फास्फेट। तो यहाँ पे तीसरी जो नाइट्रोजनस बेस इन द फार्मा, मान लो गाइनोसिन, इसको मैं अलग यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा अलग शेड से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ गाइनोसिन थर्ड टाइप ऑफ, सो ये यहाँ कंबाइन होगी। तो ये तीसरे ये जो है ये न्यूक्लियोटाइड ये यहाँ पे कंबाइन होगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज थर्ड न्यूक्लियोटाइड। तो ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड चौथे न्यूक्लियोटाइड के साथ बांड बनाएगा, फास्फोडाइस्टर बांड। यहाँ पे बनाऊंगा मैं, यहाँ पे पेंटोस शुगर, दिस इज पेंटोस शुगर, तो ये इसके साथ बांड होगा। यहाँ पे CHH, सो इस कार्बन के साथ 5 कार्बन के साथ ये कंबाइन होगा। तो यहाँ पे फोर्थ नाइट्रोजनस बेस आएगी इन द फार्मा थाइमीन, सो यहाँ पे हम थाइमीन बनाऊंगा। सो दिस विल बी थर्ड न्यूक्लियोटाइड एंड दिस विल बी फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ से अगर शुरू हम करेंगे, ये फास्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ कंबाइन हुआ, सो दिस विल बी स्टार्टिंग पार्ट या वन एंड ऑफ द, दिस इज फर्स्ट एंड या वन एंड of this polynucleotide chain, one end of chain, it is called as 5' end. This is called as 5' end. तो जो लास्ट पे आएगा उसमें यहाँ पे this it is OH, so this is कार्बन नंबर थर्ड यहाँ पे। so कार्बन नंबर थर्ड पे लास्ट पे आएगा यहाँ पे, this is कार्बन नंबर थर्ड, यहाँ पे ऐड होगा OH hydroxyl group. So this is another end of this nucleotide chain. This will be called as 3' end. This is called as, so it has two ends. The starting end that is called as 5' end. Here phosphate group combines with the help of this phosphoester linkage with carbon number 5 of pentose sugar. It is called as one end, that is called as 5' end. So here this another end, यहाँ पे जो hydroxyl group तीसरे कार्बन पे होता है, that is called as 3' or 3' end. सो ये मान लो एक स्ट्रैंड हमें बना, मान लो दिस इज कॉल्ड एज वन स्ट्रैंड। तो ये डीएनए जो होता है, डीएनए में देयर आर 2 स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब दूसरा स्ट्रैंड बनेगा। तो दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ की कौन सी नाइट्रोजन बेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नाइट्रोजन बेस एडेनिन है। तो अगर हमें ये सीक्वेंस ऑफ वन चेन वी नो, यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कौन सी नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे कौन सी नाइट्रोजन बेस है। तो दूसरी बात हमें ये मालूम होनी चाहिए कि ये नाइट्रोजन बेस एक किस दूसरे नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। फॉर एग्जांपल एडेनिन ये बॉन्ड करता है विद थाइमीन के साथ, या जी जो है इट लिंक्स विद साइटोसिन, वो ये हमें मालूम होनी चाहिए। तो हम दूसरा स्ट्रैंड जो है उसकी सीक्वेंस हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एडेनिन इट विल कंबाइन विद थाइमीन इन सेकंड स्ट्रैंड, ये थाइमीन है इट विल बॉन्ड विद एडेनिन इन सेकंड स्ट्रैंड। सो यहाँ पे दिस गाइनोसिन है, दिस विल पेयर विद साइटोसिन, दिस विल पेयर विद साइटोसिन, यहाँ पे सी है सॉरी, दिस विल पेयर विद साइटोसिन, यहाँ पे साइटोसिन है तो साइटोसिन विल पेयर विद गुआनिन। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है दिस, ये जब एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से बॉन्ड करते हैं, दैट बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नोट करो आप, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जब एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजन बेस के साथ पेयर करते हैं तो दे पेयर विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे एडेनिन एंड थाइमीन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बिटवीन, आप ये लिखो बिटवीन A and T, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 2 H bonds are formed, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। तो जब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स होंगे बिटवीन थाइमीन एंड एडेनिन, तो बिटवीन गाइनोसिन एंड साइटोसिन ये हियर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड,
यानी बिटवीन, आप इस तरह लिखो, बिटवीन gynosine and cytosine, three hydrogen bonds will be formed between gynosine and, so यहाँ पे इस स्ट्रैंड में साइटोसिन है, यहाँ गाइनोसिन, तो यहाँ 3 बॉन्ड्स बनेंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड्स, so these bonds are called as between gynosine and cytosine, 3 hydrogen bonds will be formed, 3 hydrogen bonds will be formed. So this is fourth type of bonding. जब ये 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं तो उस वक्त के हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, तो यहाँ पे बॉन्डिंग जो हुई, इट इज आर 3 टाइप्स या 4 टाइप्स। तो पहला वाला बॉन्ड जो मैंने बताया, दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, दैट इज बिटवीन पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। नंबर 2 आप नोट करते जाओ, and between pentose sugar and nitrogenous base called as N-glycosidic linkage between pentose sugar and phosphate, between phosphate and pentose sugar, so that is called as phosphodiester linkage, that is called as phosphoester linkage, that is called as phosphoester linkage। तो उसके बाद तीसरी लिंकेज between two nucleotides, so जो लिंकेज बनती है, that is called as phosphodiester linkage, that is called as phosphodiester linkage, तो fourth type of linkage that between these nitrogenous bases, so that is called as hydrogen bonding, between nitrogenous bases, तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस है, तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिंकेज होगी। सो इस तरह ये दिस विल बी कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस विल बी कॉल्ड एज polynucleotide chain, so this will be called as polynucleotide chain। तो इनमें पोलैरिटी जो है, they have, and they are the two strands, they are antipolar as far as polarity is concerned। polarity, so the two strands are, is opposite of the two strands are antipolar, it means that one end starts from 5', so that is called as 5' end, so other end here 3 hydroxyl and 3 carbon which is hydroxyl group, so this is called as 3' end, so these are called as antipolar। number 1 ये आप याद रखेंगे, there is antipolarity as far as polarity is concerned। दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे, the two strands are complementary। second point, the two strands are complementary, the two strands are complementary, that is उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक स्ट्रैंड की स्ट्रेंथ अगर हमें पता है, if we know, आप इस तरह लिखो, if we know, यहाँ पे आप लिखो if we know, और यहाँ पे आपकी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने मिटा दिया, फिर से लिखूंगा मैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर लिंकेज। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो मैंने बताया, the two strands are complementary, that means if we know the strands are, if we know
if we know, इस तरह लिखो, if we know the sequence of one strand, if we know the sequence of one strand, the sequence of other strand can be determined. And if we know the sequence of one strand, we can determine the sequence of other strand. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रैंड हम जब ले लेंगे तो इस स्ट्रैंड की सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ए है, यहाँ पे टी, यहाँ पे जी, यहाँ पे सी. तो वी नो द सीक्वेंस ऑफ दिस. तो उसके बाद हमें मालूम होना चाहिए ये ए जो है ये किस बेस पे के साथ बॉन्ड पैटर्न या बॉन्ड दिखा देता है या किसके साथ बॉन्डिंग करता है. सो वी नो दैट ए, हमें पता है, वी नो दैट ए बेस पेयर से टी, ए बेस पेयर से टी, तो जी बेस पेयर से सी, ये हमें पता होनी चाहिए. तो हम इस, अगर ये हमें मालूम हो इस स्ट्रैंड में कौन सी सीक्वेंस है, कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा स्ट्रैंड है हम उसकी सीक्वेंस डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं. मान लो यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन आएगा, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ एडेनिन आएगा, यहाँ पे गाइनोसिन है, यहाँ पर साइटोसिन आएगा, यहाँ पे साइटोसिन है, यहाँ पे गाइनोसिन आएगा. तो अगर हम एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस हम जानते हैं, दैट इज इफ वी नो द सीक्वेंस ऑफ one strand, as I mentioned here, if we know the sequence of one strand, the sequence of other strand can be determined. So this is called as complementary. And this is called as complementary. That's I told you that the two strands are complementary. The two strands are complementary. So this will be called as polynucleotide chain. In nutshell, I will say you that nutshell में बताऊंगा यहाँ पे लिखूँ मैं. तो पहले क्या होता है, दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड उस वक्त बनता है जब न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स. तो न्यूक्लियोटाइड्स कब बनेंगे, जब फॉस्फेट ग्रुप ये न्यूक्लियोसाइड के साथ कंबाइन होगा, तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो कब बनेगा, न्यूक्लियोसाइड तब बनेगा जब पेंटोज शुगर ये नाइट्रोजनस बेस के साथ मिलेंगे, नाइट्रोजनस बेस. तो नाइट्रोजनस बेस क्या है, there are two types. One is called as purine, second is called as pyrimidine. And one is called as purine, second is called as pyrimidine. So purine जो है, they are further of two types, adenine, guanine. तो pyrimidine is there are three types. एक तो साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरेसिल. मतलब यूरेसिल में हम आरएनए में मेंशन करेंगे. अगर हम डीएनए ले लेंगे डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, तो यहाँ मैंने एक स्ट्रैंड बना दिया यहाँ पे, तो दूसरा स्ट्रैंड इसका नीचे बना सकते हैं. तो उसमें हम सिर्फ ये फर्स्ट 4 नाइट्रोजन बेस वी कैन मेंशन. मान लो अगर हमें आरएनए की मतलब स्ट्रैंड हमने बनाना है, तो उस वक्त हमने एडेनिन, guanine, साइटोसिन एंड यूरेसिल उस वक्त हमने मेंशन कर दिया. तो आगे वी कैन मेक ओनली दिस स्ट्रैंड. अगर ये मिटाएंगे, ये वाला नीचे वाला स्ट्रैंड ये जो मैंने यहाँ बनाया, अगर इसको मिटाएंगे तो यहाँ पे आरएनए विल बी सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर. तो वहाँ पे थाइमिन के बजाय हमें यूरेसिल मेंशन करना है. सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, जब नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन, guanine, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल आते हैं, दे विल मेक प्यूरिन एंड पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस. तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन कंबाइन, दे फॉर्म नाइट्रोजनस बेसिस. तो पेंटोज शुगर as well as nitrogen base combined together, they make nucleoside. Nucleoside plus phosphate group make nucleotides. तो nucleotide जब combine होंगे, it will make polynucleotide. So that polynucleotide may be either DNA
or it may be RNA. So these are called as nucleic acid in the form of DNA and RNA. So इसके बाद उनका structure क्या है, that structure will be discussed tomorrow. I think this is section part 2. Thank you.